Good evening, student. And today we are going to discuss the some numerical on the convolution code. मैंने आपको पहले कुछ हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था convolution code पे हमने सारी चीज मैंने बता दिया कि how the message polynomial can be generated and how the message polynomial या generated polynomial and then multiplication of the message and generator polynomial we get the code polynomial and finally how the bit stream can be recovered from the polynomial and then how the bits are interleaved to get the final output. ये ऑलरेडी सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ न्यूमेरिकल डिस्कस करें क्या है। तो न्यूमेरिकल आपका जो है कंसीडर द रेट r is equal to 1 by 2 constant length k is equal to 2 convolutional encoder the code is systematic. Find the encoder output produced by the sequence 10111 और इनकोडर का आपका जो फिगर है आपका वो ये है। एक ब्लॉक आपका एक फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है। देन हियर इज द इनपुट एंड हियर वी गेट द आउटपुट मीन फर्स्ट कोड एंड हियर द मॉडुलो साइन यूज्ड. This is the input and this is called as the modulo 2 adder and here is the output. This is the complete question. Okay, consider the rate r is equal to 1 by 2 means here आपको ये पता है जो रेट का फॉर्मूला होता है वो k upon n होता है where k is the message bit and 2 is the number of encoded bit or total number of the encoded bit and here r is equal to 1 by 2 means if the message bit of 2 bit then the encoded output of the 4 bit. इस तरीके से उनका जो रेशियो हमेशा क्या होगा वो 1 by 2 होगा and the constant length that is k is equal to 2 and convolution encoder and the code is systematic and find the encoder output produced by the sequence 10 and 111 and this is the message signal. Okay, and this is the complete figure. Here is the flip flop D. We can say that D is the used to store the single bit and there is the two code form that we can say C1K by name लिख सकते हैं and C2K and actually we get the output CK and here is the message 1011. We have to calculate the CK. So first of all we have to calculate what is the generator polynomial and generator polynomial basically calculated from the encoder output. ये जो encoder का आपका फिगर दिया है वहां से हम क्या कहते हैं वहां से हम उसको लिखते हैं. ओके, तो as we know for the code CK1 and there is first of all we have to convert this bit stream into the message polynomial like the mx is equal to first bit is 1 and then x to the power 0 means start from the x to the power 0 and then a plus sign place and after that we are using the
कोफिशिएंट जो बिट्स हमारे हैं वो कोफिशिएंट होंगे एंड देयर इज द यूज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द x. देन सेकंड बिट इज 0, that is 0 into x to the power 1 plus 1 into x to the power 2 plus 1 into x to the power 3 plus 1 1 2 3 4 x to the power 4, and finally we get the massage polynomial 1 plus x square plus x cube plus x to the power 4. तो दिस इज द मैसेज पॉलिनोमियल. कैसे हमने राइट किया? हमें पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट आपका जो बिट्स होगा, जो मैसेज बिट स्ट्रीम दिया हुआ है, एंड देन हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ द x बाय the power of the x, that is x to the power 0, x to the power 1, x to the power 3 up to how many number of bits are present in the message. Okay, and after that we have to calculate ck1 and ck1 के लिए हमें जो हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल होगा that is represented by g1x. g1x आपको ये ध्यान देना है, जैसे ये आपका फिगर है, मैंने आपसे पहले बताया था हमारा ये दिस साइड इंडिकेट सिंपली 1 एंड आफ्टर दैट हियर इंडिकेट x. अगेन अगर आपको और अगर आपका फ्लिप फ्लॉप होता तो वहां पर आपका एक्स स्क्वायर होता. मीन्स जितनी बार आपका फ्लिप फ्लॉप लगते जाएंगे 1 by 1, देन हियर यार सिंपली अगर हम इसको एक्स के फॉर्म में अगर बोलना चाहें, हियर देयर इज एक्स टू द पावर 0, हियर एक्स टू द पावर 1, अगेन अ फ्लिप फ्लॉप इज प्लेस्ड, देन आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो बस हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारा जो आउटपुट है किसके किसके थ्रू आ रहा है वो. तो इफ अगर देखें आप जो ck1 है, सीधे आपका जो इनपुट दे रहा है वही आपका आउटपुट जा रहा है. तो हियर वी कैन से दैट g1x इज इक्वल टू 1, आपका ये हो गया. एंड आफ्टर दैट g2x इज इक्वल टू, आप देखें ये आपका मॉडुलो साइन जो हुआ है 2 का है, दैट इज 1 प्लस x. ये आपका फॉर्म हो गया. ठीक है, अब जितनी चीज हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमें सब मिल गया. हमें मैसेज पॉलिनोमियल जो बिट स्ट्रीम के फॉर्म में था हमने उसको मैसेज पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. एंड देन आल्सो वी कैलकुलेट जनरेटर पॉलिनोमियल. There is the two code generated from according to the encoder. Then there is the two generated polynomial represented in the form of the g1x and g2x, and according to the use of the flip flop we write expression या we write the polynomial in the form exactly that is. अगर हम बात करें ck1 हमारा है exactly which is the exactly जो हमारा इनपुट है वही हमारा आउटपुट है. ठीक है, जो कोड हो रहा है. बट इन c2k ये आपका दो का मॉडलो है, that is 1 plus x. Similarly here हमने जो राइट किया 1 plus x. वन थिंग मोर हम यहाँ पे क्लियर कर दें, यहाँ जो हमने सिंपली यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया हुआ है, ये प्लस नहीं है, ये आपका एक मॉडुलो का साइन है. ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था जब कभी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर कोई आपका ऐसा टर्म होगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसी में, तो ये मिल गया. तो अब जो मीन्स हमारा जो इनकोडर का जो फिगर था उसके अकॉर्डिंग हमने ये जनरेट कर लिया. ठीक है, और ये हमारा मैसेज पॉलिनोमियल. अब हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सॉल्व करना है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना हमें. ओके, एंड नाउ एक्चुअली हमारा होता क्या, मान लीजिए हमारा c1x और c2x ये आपका है 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, ये आपको पता है, इज इक्वल टू mx होगा. ये जो आपका mx मैट्रिक्स है इट इज द ऑर्डर ऑफ 1 क्रॉस 1 एंड ऑल्सो देयर इज द जनरेटर पॉलिनोमियल लाइक g1x एंड g2x. ये हमने हो गया. ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको ये पता है हियर 1 क्रॉस 2, तो आपको ये पता है कभी भी हम दो मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स and the row of the second matrix. If these are same, then simply we multiply these two matrices, and here we get the matrix of the 1 cross 2. 1 cross 2 means because ये आपके जो हैं ये दोनों आपके मर्ज हो जाते हैं, तो फाइनली वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 2. तो आपका मैट्रिक्स होगा क्या, ये आपका mx होगा और g1x हो गया. पहला कॉलम आपका एलिमेंट हो गया और mx
and g2x. This is the second element. Okay, on comparing two matrix we get c1x is equal to mx and g1x is equal to mx जो आपको दिख रहा है वहां पे क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4. तो multiply by simply 1 because here g1x is equal to 1 and finally we get the same 1 plus x square plus x cube plus x to the power 4. तो ये आपको कोड मिला क्या, ये आपको कोड मिला c1x पॉलिनोमियल. ओके, एंड आफ्टर दैट c2x क्या होगा आपका mx g2x is equal to 1 plus x square plus x cube plus x to the power 4 1 plus x मीन्स सेकेंड कोड को जनरेट के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आपका 1 प्लस है. सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाई 1. अगर आप इसको लेंगे तो वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5. ओके, फाइनली अब हमें 1 बाई 1 हमें यहाँ पे राइट करना है टर्म्स को और मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द एक्स यूज करेंगे. हमें चेक करना है पहला हमारा टर्म 1 हो गया, देन एक्स स्क्वायर. अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारे जो टर्म है चाहे वो एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स क्यूब हो चाहे एक्स टू द पावर 4 हो वो कितने टर्म्स लिखे, कितनी बार लिखे गए. इफ दिस टर्म अगर आपके इवन नंबर आप में है तो वो हटा देंगे, वो वैल्यूज नहीं होगी. Because as we know in this plus sign there is XOR operation, and as we know in the XOR operation if the bits input are same then the output is equal to 0. Okay, तो we can say that आपका अगर कोई भी दो टर्म अगर आपके इवन नंबर में है देन उसको हम हटा देंगे. अगर वो आपका ऑड है, ऑड मीन्स 1 टाइम 3 टाइम या 5 टाइम है, अगर सिंगल 1 टाइम में लिख देंगे, अगर वो 3 टाइम है तो उसको एक बार लिखेंगे. ठीक है, अगर 5 टाइम उसको हम एक बार लिखेंगे क्योंकि आप जब XOR ऑपरेशन करेंगे तो इफ द टर्म आर इन द ऑड देन सिंपली वी कैन राइट अ सिंगल टाइम. ओके, एंड आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर आई थिंक सो नो देयर इज x प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो अ सिंगल टाइम प्लस एक्स क्यूब देखिए आपका 2 टाइम लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे. एक्स टू पावर 4 भी आपका 2 टाइम में नहीं लिखेंगे, एक्स टू द पावर 5. दिस इज द C2x. ये आपका हो गया. नाउ these code are in the polynomial form, so we have to calculate in the bit stream. बिट स्ट्रीम के फॉर्म में क्या होगा, तो जो प्रोसेस अभी हमने यूज किया था किस तरीके से हमने बिट्स को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा, अगेन अब हमें जो क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल से बिट्स के फॉर्म में लिखना है. तो लेट अस कंसीडर, अगर आप यहां देखेंगे C1x, इसको हम ऐसे C1k लिख देंगे. वो हमारा क्या होगा, आपका यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका कौन से टर्म है नहीं. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसको 1 को हम x टू पावर 0 ले सकते हैं, देन अगला हमारा x टू द पावर 1 होना चाहिए, बट वो टर्म है नहीं, उसकी हम क्या प्लेस करेंगे, कोफिशिएंट हमारा 0 होगा. सिमिलरली x स्क्वायर है, x टू पावर 3 है और x टू पावर 4 है. ठीक है, और आपको आगे दिख रहा है कि ये x टू पावर 5 तक गया है, हमें अगले को भी हमें x टू पावर 5 टर्म तक जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला टर्म तो है, x टू द पावर 1 का टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा आपका. देन x स्क्वायर है आपका, x क्यूब भी है, x पावर 4 भी है, x टू पावर 5 आपका नहीं है, ये टर्म आपका 0 हो गया. ठीक है, सिमिलरली अगर हम C2k को अगर राइट करना चाहें तो वही आपको रूल फॉलो करना है. पहला टर्म आपका है x टू द पावर 1 भी आपका है, स्क्वायर भी आपका है, क्यूब और 4 नहीं है, 0 0 1. ये आपको ये क्लियर हो गया किस तरीके से हमने यहाँ पे ये पॉलिनोमियल को बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. बस आपको ये चेक करना है कि इस टर्म में कौन सा टर्म नहीं है. जो टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट हमारा क्या है, 0. एंड इन बिट हमें बिट में रिप्रेजेंट करने, सिंपली वी हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, नाउ फाइनली व्हाट इज द k ck एंड व्हाट इज द कोड फॉर दैट पर्टिकुलर जो हमने एग्जाम जो क्वेश्चन लिया था. तो अब क्या करना है, हियर वी आर यूजिंग द इंटरलीविंग प्रोसेस. इंटरलीविंग मींस ये आप इंटरलीविंग करेंगे एक साथ, ये करेंगे आप इस तरीके से करेंगे
तो वी गेट 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1. So this is the code, this is the encoder output of the मैसेज. जो मैसेज गिवन था आपका, आई थिंक जो मैसेज आपका था वो था 10111 आपका मैसेज था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये कोड फॉर्म हुआ. ठीक है, तो बहुत इजी नहीं मेरे ख्याल था. आपने देखा किस तरीके से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिट्स को मैसेज के फॉर्म में, मैसेज पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन आल्सो आपने इनकोडर के फिगर से आपने जनरेटर पॉलिनोमियल को राइट किया, एंड देन फाइनली वी आर यूजिंग द ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया पॉलिनोमियल्स को, देन पॉलिनोमियल्स को फिर आपने बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो एक न्यूमेरिकल था. एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा. फिर हमने लास्ट में फाइनली हमें जो दो कोड मिले हुए हैं हम उसको यहाँ पे इंटरलीविंग का प्रोसेस है हमें यूज करना है. तो अगर इन द केस मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे C3K भी अगर होता, मान लीजिए कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है इनकोडर की फिगर में कि आपका एक और आउटपुट होता है कोड का, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरलीविंग हम तीनों को यूज करेंगे. मीन्स हमारा जो ये होगा, ये हमारा जो कांस्टेंट लेंथ जो न्यूमेरिकल में 2 लिखा था, तो हमारा वो 3 हो जाएगा. मतलब आपके ये 3 बिट के हो जाएंगे. कहने का मतलब ये है. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. So that encoder for a rate r is equal to 1/2 constant length k is equal to 4 convolution code determine encoder output produced by the मैसेज सीक्वेंस. आई थिंक सो जो मैसेज सीक्वेंस वही आपको जो पिछले केस में था 10111 ये रहा आपका. इस फिगर में इनकोडर में अगर मैं आप राइट करें तो मैं फिगर यहाँ बना दे रहा हूँ. एक ब्लॉक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा ब्लॉक, एंड देन एक आपका ये ब्लॉक रहा. 3 आपके यूज किए गए, और हियर इज द इनपुट. और एक आपने यहाँ पे मॉडलो यूज किया हुआ है. उस मॉडलो में एक आपका ये गया हुआ है, एक आपका ये गया हुआ है, और एक आपका ये आ गया डी डी डी, और एक और मॉडलो आपका यूज किया गया जिसमें आपके ये सारे हैं. एंड फाइनली वी गेट the code. Similarly also can write here C1K, and we can write here this is for the C2K, and here is the output. This is the flip-flop, and this is also called the modulo 2 adder. This here is XOR operation modulo 2 adder. ओके, ये आपका इनकोडर का फिगर है. तो वही प्रोसेस आपका है सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द ऑल द पॉलिनोमियल लाइक. तो अगर हम बात करें हमारा जो मैसेज पॉलिनोमियल होगा, अगर सोल्यूशन की हम बात करें
तो अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस वी कैन राइट मैसेज पॉलिनोमियल mx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। आई थिंक आपका यही होगा, बिकॉज आपका सेकंड बिट आपका 0 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका वो हमारा x का टर्म नहीं होगा। नाउ अगर हम थोड़ा यहाँ राइट करना चाहें, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब हो गया। सिमिलरली एंड देन अगर हम राइट, एक मैं इसको मैं ऊपर टॉप से लिखता हूँ क्योंकि हमें इसको इरेज करना होगा फिर। आई थिंक न्यूमेरिकल आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो अगर हम राइट करना चाहें तो आपका जो मैसेज पॉलिनोमियल जो है वो आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, ये आपका हो गया। नाउ g1x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, g1x जो ये दिख रहा है वो इसका 1 का x का और x क्यूब का एक्सॉर है, मींस 1 प्लस एक्स क्यूब। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमने मेंशन कर दिया है कि आप जो पहला इनपुट अगर आप ऐसे इसको 1 डिनोट करोगे मींस यहाँ पे आपका x टू द पावर 0 आप कह सकते हैं, यहाँ x टू द पावर 0 है। आगे आपका फ्लिप फ्लॉप का एक आपके जाने के बाद वो आपका x टू पावर 1 हो जाएगा, अगले बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के बाद आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से है। तो आपको दिख रहा है ये हमारा, अगर हम लिखना चाहें, ओके सॉरी ये आपका C2K होगा, सॉरी इसको आप G2X लिखिए, सॉरी G2X हमने जो नेमिंग किया हुआ है, G2X आपका क्या हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब। G1X क्या होगा आपका, आई थिंक इसमें सारे आपके यूज हो रहे हैं, तो आपको वी कैन राइट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपके टर्म हो गए। ठीक है, तो इनकोडर का यूज बस आपका यही है, टू राइट द जनरेटर पॉलिनोमियल फ्रॉम दैट वी आर ऑब्जर्विंग द ओवरऑल क्या कहते हैं इनकोडर फिगर एंड देन वी कैलकुलेट द जनरेटर पॉलिनोमियल। ओके, एंड आफ्टर दैट सिंपली वही हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस था हम उसी को कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, मैं 1 बाई 1 कोड्स में कैलकुलेट करता हूँ। लेट अस कंसीडर, अगर हम बात इसको मैं ऐसे नहीं डिवाइड नहीं करता हूँ इसको, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें C1X वो क्या होगा mx इंटू G1X। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है जो लिखना आपको है। mx क्या आपका हो गया 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, सॉरी मल्टीप्लाई साइन होगा आपका, और ये आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। Simply we have to multiply, the term is equal to 1 plus x square plus x cube plus x to the power 4 plus x plus x cube plus x to the power 4 plus x to the power 5 plus x square करेंगे x square plus x to the power 4 plus x to the power 5 plus x to the power 6, last x cube x to the power 5, x to the power 6, x to the power 7। अब हम अगेन यहाँ पे चेक करना भाई, जो आप करते आए हो वही करना आपको है कि आपके यहाँ पे टर्म है वो ऑड है इवन है, अगर आपके वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको हम एक बार लिखेंगे और इवन उसको हटा देंगे। ठीक है, तो 1 का कोई यूज है नहीं, वो ऐसा लिखेंगे। और आई थिंक एक आपका जो x अगर हम देखें वो आपका सिंगल है, आई थिंक और कहीं आपका x है नहीं। ओके, 1 प्लस एक्स मतलब हमने इसको यूज कर लिया और इसको यूज कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर देखें आपका टर्म एक यहाँ पे है, एक आपका टर्म यहाँ पे है, आई थिंक और कहीं आपका एक्स स्क्वायर नहीं होगा। अगर आप काउंट करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा 2 टाइम है, देन इसको हटा देंगे। मैं आपसे बोला था अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसको हटा देंगे। ठीक है, हट गया। अब हम बात करेंगे एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब आपका दिख रहा है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पे है, 3 टाइम लिखा हुआ है, इसको हम सिंगल 1 टाइम लिखेंगे। प्लस अब x टू पावर 4 देखें जरा, हम इसको पहले कैंसिल कर दिया, हमने इसको यूज कर लिया। x टू पावर 4 आपका ये है, एक ये है और एक आपका ये है, ये भी 3 टाइम आई थिंक सो है, प्लस x टू पावर 4 प्लस इसको हमने यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, हमने इसको यूज कर लिया। एंड आफ्टर दैट
अब हम क्या बात करेंगे, अब हम देखें यहाँ पे, अब हमारा जो x टू पावर 5 देखेंगे तो ये भी शायद 3 है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये भी 3 टाइम है, इसको हम क्या लिखेंगे, x टू पावर 5 प्लस x टू पावर 6 एक बार है प्लस x टू पावर 7 एक बार है। ओके, तो दिस इज द, ये आपका एक पॉलिनोमियल मिल गया, सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट दिस वन। ओके, आफ्टर दैट c2x क्या होगा आपका, mx इंटू g2x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मैसेज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4, और वो क्या आपका है 1 प्लस एक्स क्यूब, वो हो गया। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4, फिर x को लेंगे प्लस x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 5 एक्स टू पावर 6 एक्स टू पावर 7, अगेन 1 हमारा है, आई थिंक ये यूज हो गया आपका, x आपका एक बार है प्लस x, अब एक्स स्क्वायर देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर हमारा एक बार यहाँ लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब चेक करें अगर हम, एक बार यहाँ एक्स क्यूब आपका है, एक ये एक्स क्यूब लिखा हुआ और एक ये एक्स क्यूब आपका 3 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंगल लिखेंगे, प्लस एक्स टू पावर 4 चेक करें, एक्स टू पावर 4 आपका जो है वो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ 2 टाइम है, इसको ये लिखेंगे, एक्स टू पावर 5 ये भी 2 बार लिखा हुआ है, इसको भी नहीं लिखेंगे, प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7। ओके, आई थिंक अब देखिए दोनों में आपके ये टर्म सेम है तो हमें इश्यू नहीं है, हमें ना तो यहाँ पे कुछ हमें ऐड और वो नहीं करना, अब हम इसको बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें मिला क्या, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो c1x बेसिकली हमें क्या मिला, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 5 प्लस x to power 6 प्लस x to the power 7। सिमिलरली c2x क्या मिला हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x to power 6 प्लस x to the power 7। नाउ दिस इज पॉलिनोमियल, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द बिट स्ट्रीम। बिट स्ट्रीम में क्या होगा वो मैंने बता दिया हमको, सिंपली वी हैव टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ द ऑल द टर्म इन द पॉलिनोमियल। ओके, देन अब लिखना चाहेंगे अगर हम c1k, तो यहाँ पे x टू पावर 0 है आपका, वो 1 हो गया, x का भी है, x स्क्वायर टर्म नहीं है उसको 0 प्लेस कर देंगे, x टू पावर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये आपका हो गया। सिमिलरली c2k क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू 1 1 1 1, बाकी आपका 4 नहीं है 5 नहीं है, 0 0 1 1। दिस इज द बिट स्ट्रीम ऑफ दैट पॉलिनोमियल, इसके अकॉर्डिंग ये रहा और इसके अकॉर्डिंग आपका ये रहा। नाउ व्हाट इज एक्चुअल कोड, सिंपली वी आर इंटरलीविंग द दीज टू, इंटरलीविंग करेंगे तो क्या होगा आपका 1 1 कमा 1 1 कमा 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 कमा 1 1। दिस इज द एक्चुअल कोड, ये आपका एक्चुअल कोड यहाँ पे फॉर्म हुआ जो आपको दिख रहा है। हमने न्यूमेरिकल मैंने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किया और बेसिकली आपका जो चीजें थी वो क्लियर बता दिया कैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं जरा, मैं अगर आप देखना चाहें यहाँ पे वन थिंग मोर, अभी यहाँ पे हमें एक्चुअली जो आपका जनरेटर पॉलिनोमियल था वो आपको इस तरीके से लिखा गया था, बट अगर मैं एक चीज और हमें डिस्कस करना है कि कभी कभी क्या होता है जनरेटर पॉलिनोमियल को जो है बिट्स के फॉर्म में लिखा होता है, मतलब इनकोडर फिगर ना देखे उसको ऐसे लिखा होता है, तो हमें वो भी हमें कंसीडर करना होता है और उसको हम कंसीडर करेंगे जो चीज़ें लिखा। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो जैसे आपका ये था, अगर हम बात करें जैसे इसी वाले केस में जैसे हमने g1x जो आपका था क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये था, एंड सिमिलरली
g2x हमारा जो था वो क्या था, आपका था 1 प्लस एक्स क्यूब, ये था। सीधे हमने इनकोडर के फिगर्स हमने पॉलिनोमियल को राइट कर लिया। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में ये आता है कंफ्यूजन के लिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें ये देखना होता है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल डायरेक्टली आपको लिखा है, कभी कभी ये बिट स्ट्रीम में भी इसको लिख सकते हैं। जैसा भी हमने सारा जो पॉलिनोमियल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया या बिट स्ट्रीम से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया, सिमिलरली वी कैन आल्सो कन्वर्ट दिस पॉलिनोमियल इनटू द बिट स्ट्रीम। अब इसको हम कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखा जाएगा आपका, जैसे वो था ना आपका जो कांस्टेंट लेंथ जो इसमें 4 था आपका, कांस्टेंट लेंथ 4 का मतलब है आपका जो जनरेटर पॉलिनोमियल है वो 4 बिट का होगा, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 1 1 1 1, मींस आपका यहाँ पे सारे जो पॉलिनोमियल का जो हमारा x का जो टर्म है सबके कोफिशिएंट हमारे क्या है, 1 है। सिमिलरली इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1 0 1, ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए अगर ये भी अगर दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपका ये दिया होता है, मींस आपको इनकोडर का फिगर ना देके सीधे आपको ये दिया होगा, बिट्स के फॉर्म में दिया होगा, मींस कांस्टेंट लेंथ आपका दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिनोमियल राइट आप कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा इनकोडर का फिगर नहीं दिया हम कैसे करेंगे, बट चाहे इस फॉर्म में लिखा हो आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इनकोडर का फिगर दिया तब पर भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस कर दी आपको मैं ये, लेकिन हाँ सेमेस्टर में न्यूमेरिकल इस पर आता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।